Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, dear students, last time we were discussing about pharmaceutical biotechnology, and the topic which we were discussing in pharmaceutical biotechnology was genetic engineering or recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology means we have prepared a DNA which is recombinant, or a combination of a vector and our target DNA. If the target DNA and the vector which is going to be transferred, which is actually the part which transfer the active DNA to the targeted site, where we require the genetic proceduring, for example, a protein formation, a enzyme delivery, for example, a new genetic makeup development. This kind of action could be achieved by recombinant DNA. So a process in which we develop a recombinant DNA is known as genetic engineering. So genetic engineering is are having three tools with which we will actually develop this technology. Number one are enzyme, number two are vectors, and number three are complementary DNA clone. In the enzyme section, we discussed that there are four enzymes. One enzyme is restriction endonucleases. Restriction endonucleases mark the DNA with methylated or glucosylated nucleotides. The methylated or glucosylated nucleotides represent the place from where these will be cleaved, or means the phosphodiester linkage will be cleaved from the place where this methylation or glucosidation has occurred. So the four types of restriction endonucleases are the types which depend on the distance from which they are cutting the phosphodiester linkage or the DNA strand from methylated or glucosylated nucleotides. So if they are cutting exactly from the place where these have been attached, means they are sequences which are in the recognition sequence, which is outside the recognition sequence. So this will be a restriction endonuclease 3 enzyme. Secondly, it cleaves from the recognition side the position that you define or our DNA has defined from a defined position, then it will be restriction endonuclease 2. So these are the two enzyme, restriction endonuclease 2 or 3, which we use to prepare our sticky ends, the sticky ends which will be lacking the phosphodiester linkages. And sticky they are called because their covalent bond have been broken due to between the purine and pyrimidine bases. The covalent bond have been broken to make them an electron with a lone pair of electrons, and the phosphodiester linkage breakage made them a single strand. They have separated from the double helix. So the purpose of this one is to cut the DNA from the specific recognition sites. There are the examples of the some restriction enzymes. Second type of enzyme is DNA ligase. Ligases are the enzymes which are used to develop phosphodiester linkages. Phosphodiester linkage will be only developed when a phosphate PO4 means a group will be present. That present molecule will develop oxygen hydrogen bonding and other oxygen to carbon linkages with by phosphodiester linkages. Reverse transcriptase is a third one enzyme. It will be used to develop messenger RNA from cDNA. Transcription is a process in which we develop messenger RNA, and the reverse transcriptase is the process in which DNA is constructed from the messenger RNA. So when we will discuss cDNA, the purpose of this reverse transcriptase will be discussed. Fourth one enzyme is alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase is the enzyme which removes the phosphate bond or phosphate group which is present on the DNA upon cleaving with the restriction endonucleases. The plasmids are small DNA structures, so they have the capability, when they have been cut with restriction endonucleases, they immediately on the addition of DNA ligases form the phosphodiester linkage among the plasmid DNAs. So they regain the plasmid with the DNA ligase. They have the less capability to take up the larger DNA such as human DNA,
So we actually proceed with alkaline phosphatase to digest the phosphate linkage or phosphate bond present on the sticky end of the plasmid DNA. So the foreign DNA, the DNA of the human which have been added have the phosphate group. When it will supply the phosphate group in the presence of DNA ligase, it will develop a linkage with the plasmid. Plasmid, as it have a more reaction ability, more ability to form a double helix coil, so it will be available for double helix formation with the DNA, foreign DNA which have been added to plasmid. So alkaline phosphate help in developing recombinant DNA molecule. It will majority time will produce some recombinant DNA molecule. Second tool is vectors. Vectors are those materials which are used to carry the recombinant DNA to the targeted site. So one of the targeted site, one of the vector is plasmid, which we have actually discussed in alkaline phosphatase example. So plasmids are extra chromosomal molecules of the DNA which replicate independently of the bacterial chromosome. Means they are not hereditary materials. They are not carrying hereditary information. They only contain some information which are essential for the individualization of the microorganism, or which are essential to give some characteristics to the microorganism. These characteristics include resistance to heavy metals and antibiotics. So they develop some external features to the cell that are having a resistance to metals and resistance to antibiotics. Important plasmid can be used as an as a vector for genetic engineering, because plasmids are extra chromosomal. They cannot develop a microorganism. So their way of immunity is not that specific that actually happen with the existing DNA of the microorganism. Plasmid PBR322, that is E. coli plasmid, have been developed. It is more specifically used to clone DNA, because E. coli have a large structure. Secondly, E. coli have a plasmid which is also of a large structure than the other microorganism. So the plasmid of the E. coli will have 100 to thousands of base pairs. This was the plasmid helix structure, in which there are some important points from which it start replication and addition of the some other DNAs, so that it can express the features of the other recombinant DNAs. So there is a recognition site available. There is a promoter group available. Promoter group from which the nucleotides starts attaching. There is a recognition site from which a new DNA can be added in the plasmid. There is a region of replication from which it starts replication. There is a region which develop antibiotic resistance and metal resistance. There is also region which is a selective marker region. So you can mark the plasmid also by coating such kind of genetic material, means methylation or glucosidation. Here is the E. coli molecule, in which there are bacterial DNA and plasmids. When the cell replicates, both the bacterial DNA and cell replicates. If we actually separate the plasmid from the cell and then we incorporate it to the bacterium, plasmid will integrate into the DNA of the bacterium or the DNA of the human. If it is the DNA of the human, the plasmid will incorporate with the DNA of human, and it will replicate as a hybrid DNA in the lysogenic properties. Second type of vector are the phage vectors, phage viruses. Phage viruses have the property that they can attack the specific microorganism, bacteria, and make them as form the bond between the bacterial cell wall and phage virus.
The phages attack or attach on the cells, secrete an enzyme, make a hole in the cell membrane of the bacterium, and serve the and stretches the bacterium. So the capsid of the virus becomes a part of the cell membrane of the bacterium. This type of property actually make it a fusogenicity, means it becomes fused with the bacterium. So this is fusogenicity. Secondly, if we make the phage virus deficient of its own genome and add a genome which is our desired genome, so that virus can deliver the genome of the desired DNA in the bacterial cell or the human cells. So first viral DNA will actually, one of the cycle which phage viruses proceed is lytic cycle and one is lysogenic cycle. In the lytic cycle, the DNA of the viruses form the capsid and DNA of the virus. They do not form any other proteins, and then the cell bursts and the new viruses are assembled and released from the cells. For example, this is the bacterial cell having a genome, and from there viral or DNA or viral RNA containing capsid is being attached on the cell membrane. It will dissolve from here, it will dissolve the cell membrane and will transfer its genome to the bacterial cell. That genome will become part of the bacterial genetic material and will start producing proteins or start producing capsids and the viral genome genetic material that can be encapsulated into the capsids. Today we will discuss about the fourth vector. Fourth vector name is Cosmid. Cosmids जो है वो hybrid DNA है. Hybrid DNA means these are the hybrid of plasmid and a phage. The two vectors which we have discussed previously, one was plasmid and other is phage virus. If we use a phage which is lambda phages are the phages which have a longer sequence, means a sequence which is very near to the human DNA sequence. Lambda is a size of 50,000 base pairs. If there are 50,000 or more base pairs, then that genome will be known as lambda genome. And there are phages which have a lambda genome. So lambda genome containing phage will be known as lambda phage, and a plasmid and the combination of plasmid and a lambda phage will result in a recombinant DNA that have a cos site or that have a recognition sequence of the lambda phage. Plasmid have a shorter sequence of nucleotides. It will bind to the first part of the lambda phage, and the remaining lambda phage will serve as cos sites. Cos sites have the ability to attach the other DNAs which are complementary in nature. Means our DNA which we have inserted, which is complementary DNA. So complementary DNA will attach on the अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कॉस्मिड्स. कॉस्मिड्स जो है वो कॉम्बिनेशन है ऑफ प्लाज्मिड एंड लैम्डा फेज वायरस डीएनए. So lambda phage genome will contain recognition sequences known as cos sites at each end. For example, at one end it will be having attached plasmid DNA, and at the other end it will be having attached cDNA of the means of foreign DNA. So any DNA which will be inserted between the cos sites will be packed. A packed double helix strand will be known as cosmid. The same cosmid will be again packed in the capsids,
कैप्सिड्स जो होंगे वो फिर उसको अपना डीएनए कंसिडर करके फिर वो अटैक करेंगे टू द नेक्स्ट सेल्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल है तो इकोलाई के ऊपर वो अटैक करेंगे। और अगर हमने प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई को पैक किया हुआ है लैम्डा कैप्सिड के अंदर, तो फिर वो जो इकोलाई है वो प्लाज्मिड, वो जो कॉस्मिड कहलाएगा इकोलाई के प्लाज्मिड वाला, और क्या लैम्डा फेज वायरस वाला, उसको हम COL-E1 कहते हैं, कोल E1 कॉस्मिड कहते हैं। तो ये कोल E1 जो है इसकी कैपेबिलिटी फिर इकोलाई की भी कैपेबिलिटी आ जाती है इसमें, इकोलाई के प्लाज्मिड की, और सिमिलरली इसमें फिर लैम्डा फेज की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। तो ये मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ कॉस्मिड है जो कि यूज किया जाता है। तो लैम्डा फेज जो है वो एक टेम्परेट बैक्टीरियोफेज है। जो लैम्डा वायरस डेवलप किया हुआ है वो एक टेम्परेट बैक्टीरियम है जिसमें अबाउट 48.5 किलो बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि 48 से 49,000 बेस पेयर्स होते हैं। तो इसकी ससेप्टेबिलिटी होती है कि वो इकोलाई के साथ इजीली बाइंड कर सकता है। तो इसकी इंटायर डीएनए सीक्वेंस भी हमें पता है। तो इकोलाई में जितनी वो जीन सीक्वेंस होती है वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है एक साइड पे। तो ये इकोलाई को अपने साथ डबल हेलिक्स में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये थोड़ा सा, यानी कि 1/3 या उससे भी कम 1/4 जो है वो इकोलाई के साथ डबल हेलिक्स बन जाता है, और बाकी सारा टेम्परेट रीजन इसका कॉस साइट बन जाती है। तो इसका लिटिक साइकिल इसका डेवलप हो सकता है क्योंकि ये फेज डीएनए होता है और साथ में प्लाज्मिड होता है। तो फेज डीएनए जो है वो अपना ही डीएनए, ये जो हाइब्रिड बना हुआ है वो डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है, और फिर उसका कैप्सिड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, जिससे ये नए वही लैम्डा फेजेस रिजल्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। या फिर ये लाइसोजेनिक में भी जा सकता है। तो लाइसोजेनिक ये होता है कि ये जाके डीएनए ऑफ द टारगेट ऑर्गेनिज्म उसके साथ हाइब्रिड बना देगा। तो जब वो हाइब्रिड बन जाएगा तो वो फिर उसके साथ ही रेप्लिकेट करता रहेगा। जब वो रेप्लिकेट करेगा तो वो नए सेल्स में ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर जब वो प्रोटीन फॉर्म करेंगे तो ये भी प्रोटीन फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा फेज वायरस है उसमें प्लाज्मिड वाला डबल हेलिक्स डीएनए होगा जहां प्लाज्मिड लगा है, और बाकी सारा जो है वो कॉस साइट होगा। तो जब हम अपना डीएनए डालेंगे तो इस कॉस साइट के साथ अटैच हो जाएगा जो कि कॉस्मिड बन जाएगा। तो कॉस्मिड जब ये दो साइकिल फेज है तो ये दो साइकिल में चलता है, लिटिक साइकिल में और लाइसोजेनिक साइकिल में। लिटिक साइकिल में जैसे कि इंडिकेट किया गया है कि जब भी वायरसेस जो है वो अटैक करते हैं किसी सेल के ऊपर तो अपना डीएनए देते हैं, वो डीएनए पार्ट बन जाता है बैक्टीरियम के डीएनए से, और फिर वो अपना ही डीएनए और अपना ही कैप्सिड बनाना शुरू कर देता है। तो वो फिर बर्स्ट कर देता सेल, यानी कि ये इस तरह से सारे वही डीएनए उसका कैप्सिड बनना शुरू होता है और उसमें डीएनए फिल होना शुरू होता है। फिर वो असेंबल हो जाता है, असेंबल होकर सेल बर्स्ट करता है और वायरसेस उसमें से बाहर आते हैं। ये लिटिक साइकिल कहलाता है। अगर यही वायरस जो है वो अटैक करे टू द बैक्टीरियम और फिर वो बैक्टीरियम के साथ ऐसे हाइब्रिड बन जाए और फिर वो रेप्लिकेट कर जाए, यानी कि वो डीएनए कंट्रोल ना ले, कंट्रोल होस्ट डीएनए का ही रहे, तो होस्ट डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करके दो हो जाएगा, वो इस तरह से फिर दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। माइटोसिस होगी उसकी तो वो दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, इस तरह से नए सेल्स बनते रहेंगे। तो हमें ज्यादातर जरूरत जो होती है वो लाइसोजेनिक प्रॉपर्टी की होती है, ताकि हाइब्रिड डीएनए बने। तो हाइब्रिड डीएनए जो है वो जब प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वो रेप्लिकेट भी करता रहेगा और प्रोटीन फॉर्मेशन भी करता रहेगा, तो प्रोटीन फॉर्मेशन हमें थेरेपी देने के लिए यूज हो जाएगी। तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज तो ये है कि इसमें आप, क्योंकि ये लेमडा फेज जो है वो 48.5 से 54 किलो बेस पेयर का के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो बाकी प्लाज्मिड अगर आप कहें कि 5000 तक का इकोलाई का होता है, तो रिमेनिंग बेसिस जो है वो 40,000 से 45,000 बेस पेयर रह जाते हैं पीछे। तो इतना लोडिंग कैपेसिटी बन जाती है आपके डीएनए की, यानी कि सीडीएनए जो है वो अगर उसकी 40,000 से 45,000 बेस पेयर कैपेबिलिटी है तो वो इसके ऊपर अटैच किया जा सकता है।
तो डिसएडवांटेज भी यही होता है कि कभी कभी जो हमारा डीएनए दिया हुआ है उसके बेस पेयर जो है वो 54,000 से एक्सीड कर रहे होते हैं, तो वो फिर इसके ऊपर पैक नहीं हो सकता, या उसके 38,000 से लेस होते हैं तो इसको डबल नहीं कर सकता, तो जैसे डबल नहीं कर सकता तो ये फिर स्टेबल नहीं रहता, तो ये उतर जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इस वजह से ये इसके डिसएडवांटेज है। तो लोडिंग कैपेसिटी जो है वो बिटवीन 38,000 टू 54,000 बेस पेयर्स एग्जिस्ट करती है। तो इस बेस के ऊपर ये एक बड़ा डीएनए अपने अंदर होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरा, ये इसका एडवांटेज ये होता है कि ये मल्टीप्लीकेशन इन द फेज पार्टिकल यानी कि फेज के कैप्सिड में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। तो इसलिए ये मोस्ट सूटेबल एक हमारा वेक्टर है जो कि कोई इंटायर जीनोम भी ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। अच्छा, हर किसी की जितने भी हमारे फिर इस तरह से बैक्टीरियम हैं या वायरस हैं, इनकी हर किसी की क्योंकि पैथोजेनिसिटी होती है, या ये एटलीस्ट सेंसिटाइजेशन कर देते हैं आपके सेल्स को अगेंस्ट दोज वायरसेस। तो जब भी उस तरह का कोई वायरस अटैक करता है तो उस वक्त सेंसिटाइजेशन पहले से एग्जिस्ट करती है और वो सफिशिएंट नहीं होती, तो वो डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए फिर हमने कहा कि नहीं, सारे जो पार्ट है वो ह्यूमन डीएनए का ही होना चाहिए जिसको एज अ वेक्टर यूज किया जाए। तो साइंस एडवांस होगी अप टू आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो हमने कुछ क्रोमोसोम्स बना लिए क्योंकि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि हेरिटरी मटेरियल भी इसी पे होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन भी इसी पे होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर सेलुलर प्रोसेस भी इसी डीएनए के ऊपर होते हैं। तो ये फिर हम चाहते हैं कि हम वैसा ही डीएनए बना लें। तो क्योंकि हमने कोई एक प्रोटीन के लिए डीएनए बनाना होता है, क्योंकि स्पेसिफिसिटी है, तो हमने सिर्फ एक डिजीज के अगेंस्ट एक डीएनए देना है, हम सारी डिजीज के अगेंस्ट डीएनए नहीं दे सकते। तो हमने फिर जो एक डिजीज के लिए मैसेंजर आरएनए से सीडीएनए डेवलप किया हुआ होता है, वो सीडीएनए मैक्सिमम 50 किलो बेस पेयर्स का होता है, या ऑन एन एवरेज जो है 48 टू 49 किलो बेस पेयर का होता है। तो हम वो 48 टू 49 किलो बेस पेयर्स जोड़ के डबल हेलिक्स डीएनए बना लेते हैं, यानी कि ये इनविट्रो कंस्ट्रक्टेड हमारा क्रोमोसोम है जो कि डिफाइंड जेनेटिक बेस पेयर्स का कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो गारंटी रख देता है कि इससे लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं उनकी नेचुरल क्रोमोसोम जैसी प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाएंगी रिसिपिएंट सेल के अंदर। तो एक्चुअली ये क्या होगा, 47th क्रोमोसोम इस तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएगा विद इन द सेल्स। अगर नॉर्मल ह्यूमन सेल में दिया गया जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है, तो ये छोटा एक मिनी क्रोमोसोम जो है आर्टिफिशियल, ये 47th हो जाएगा। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट आया है किसी भी डीएनए में, तो उससे कोई हेरिटरी डिजीज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल 23 क्रोमोसोम, 22 या 23 क्रोमोसोम, ये जब डबल हो जाते हैं दो जिनमें, यानी कि 47 क्रोमोसोम टोटल होते हैं और उनमें 22 या 23 क्रोमोसोम डबल है, तो ये मेमोरी से रेलिवेंट होते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट हैं उनमें ये एग्जिस्ट करते हैं, उनमें ये दो होते हैं, यानी कि उनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इस तरह डिजीज काज कर देता है, यानी कि वो अब उसकी एक्टिविटी जिसका वो एक्स्ट्रा है सप्रेस कर देता है, यानी कि काउंटर कर देता है, एक ही क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम की एबिलिटी को काउंटर करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ब्रेन का डेवलपमेंट प्रोसेस, वो डेवलपमेंट प्रोसेस खत्म हो जाता है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो कैपेबल होते हैं कि वो ह्यूमन डीएनए की फ्रेगमेंट्स को ले चले अप टू 1 मिलियन बेस पेयर्स, यानी कि 1 MB तक की डीएनए फ्रेगमेंट्स लेके चलने के कैपेबल होते हैं। तो जो हमने लैम्डा फेज बनाया था वो 50 तक लेके चलने की कैपेबल है। जो हमारा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ये आपको 1 मिलियन बेस पेयर्स तक लेके जाने का कैपेबल है। तो जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हमने फिर डेवलप किए हुए हैं वो ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी है, HAC कहलाते हैं। लेकिन उससे पहले हमने कुछ और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डेवलप किए, उनमें सबसे पहले जो डेवलप किया वो BAC था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम।
फिर हमने जो डेवलप किया वो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम था, तो उसको हमने YAC कहा। फिर हमने एक निमोनी का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डेवलप कर, तो वो पैक कहलाता है, PAC कहलाता है। तो इस तरह के हमने पहले बनाए, तो अल्टीमेटली उनकी क्योंकि इम्यूनोजेनिसिटी थी, तो उस वजह से फिर अल्टीमेट रिसर्च जो अब चल रही है वो सिर्फ ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स पे चल रही है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो पहले हमने क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाए, तो उसमें बात कर लेते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम है जो यीस्ट के डीएनए से ड्राइव किया गया है, यानी कि सैक्रोमाइसीस सर्विसी जो है उसके डीएनए से हमने ड्राइव किया हुआ है जो हमारा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो डेविड बर्क ने 1987 में रिपोर्ट किया था सबसे पहले। उसने कहा था कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो डीएनए, सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए से बिल्ड किया जा सकता है। तो इसकी कैपेबिलिटी है कि वो लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसमें कन्वर्ट होने का कैपेबल है जब इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम से कट करें, और जब आप उसको डीएनए लाइगेज से ट्रीट करें तो उसकी कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी डीएनए सीक्वेंस को अपने अंदर ऐड करके उसके साथ डबल हेलिक्स बनाने का कैपेबल है। तो यीस्ट डीएनए जो है वो सर्कुलर है, प्लाज्मिड की तरह का, लेकिन यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है जब उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से ट्रीट कर देते हैं तो वो लीनियर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब हम उसमें अपना सीडीएनए ऐड कर देते हैं तो सीडीएनए जो है वो उसके साथ अटैच हो जाता है, तो डबल हेलिक्स डीएनए लाइगेज की प्रेजेंस में वो डबल हेलिक्स डीएनए जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए है वो डेवलप हो जाता है। तो रिकम्बिनेंट यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डेवलप हो जाता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन भी होता है, उसमें उसका जहां से सेंटर ऑफ रेप्लिकेशन है वो भी एग्जिस्ट करता है, मार्कर की जगह भी होती है, उसमें जो टेलियोमार्स होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह उसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की प्लाज्मिड के वेक्टर लगा के एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस जनरेट करने की कैपेबिलिटी भी होती है। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल कट किया उसको, एक एंडोन्यूक्लियोसिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस लिया एंजाइम BAMH1, इससे हमने क्या, तो 2 टेलोमियर्स के दरमियान से ये कट कर देगा। तो जैसे ही कट करेगा तो ये कट करके उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर हम अपना जो रिक्वायर्ड सीडीएनए है वो यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही वो इंसर्ट करेंगे तो वो दोबारा से सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम दोबारा पैक कर देते हैं इन द वायरस, तो वायरस में पैक हो जाता है जिसको हम दोबारा से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है जिसमें हमने फिर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर को ह्यूमन डीएनए के साथ इंसर्ट किया, यानी कि ये वेक्टर ने क्या काम किया। तो जैसे ही वो वेक्टर आया तो उसको हमने जब एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम एक्ट करेंगे उसके ऊपर बॉडी में, तो वो उसको कट कर देंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। जब वो वहां से कट कर देंगे तो वो इधर भी कट कर देंगे हमारे डीएनए को भी। तो ये डीएनए वो कट साइड के एक साइड पे और फिर वो कट साइड की दूसरी साइड पे सेंटर में अटैच हो जाएगी। तो तकरीबन 1 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स दरमियान में उसके अटैच हो सकते हैं, ये हमने जो डीएनए दिया हुआ है। तो ये वेक्टर बन जाता है, तो यही बॉडी में जाके फिर एज अ रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो आपको सबसे नीचे बॉटम पे नजर आ रहा है ये हमारा डीएनए जब हमने उसको यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट कर दिया है तो ये उसके वो कट साइड्स के दरमियान में हमारा सीडीएनए इसमें लगाया जा सकता है। अच्छा जी, तो फिर नीड क्यों जनरेट हुई कि हमने यीस्ट, उसकी कैपेबिलिटी तो थी कि बहुत बहुत एफिशिएंटली वो 1 मिलियन बेस पेयर्स तक को कैरी करने का कैपेबल था, लेकिन हमने कहा कि जो हमारा एक प्रोटीन फॉर्मेशन का एक सेट है या क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम जो है वो तकरीबन 250 से 250 मिलियन बेस पेयर्स का नेचुरल क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है।
तो हम अगर उसमें एक क्रोमोसोम ऐड करेंगे जो इतनी ही बेस पेयर्स का होगा, यानी कि 50 से 250, तो वो वैसी ही डिजीज काज करेगा जैसी डिजीज हमें डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में नजर आ रही है। तो हमने कहा नहीं, उसको उससे छोटा क्रोमोसोम देना चाहिए ताकि वो किसी भी क्रोमोसोम की कैपेबिलिटी के साथ मैच ना करे। अगर वो मैच नहीं करेगा तो फिर इस बेस के ऊपर वो उसको सप्रेस करने का या उसको ऑगमेंट करने का कैपेबल नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने का कैपेबल। तो इसका मतलब है हम एक 46 क्रोमोसोम्स के डीएनए में एक और क्रोमोसोम जो कि स्मॉल होगा, जिसके रफली 6 to 10 ये मेगा बेस पेयर या मिलियन बेस पेयर एग्जिस्ट करेंगे, तो उसका साइज जो होगा वो उस 50 से 250 मेगा बेसिस या मिलियन बेसिस के नेचुरल क्रोमोसोम से बहुत स्मॉल होगा। तो ये एक स्मॉल क्रोमोसोम उसके अंदर ऐड किया जा सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें दोनों साइड्स जो कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की और सिमिलरली फिर जो हमारी मैसेंजर आरएनए, जो हमने मैसेंजर आरएनए से सीडीएनए बनाया, ये दोनों साइड ह्यूमन न्यूक्लियोटाइड बेसिस की एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने फिर ये वैरायटी ऑफ ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डेवलप किए हुए हैं जिनकी कैपेबिलिटी है कि वो मैनी टाइप ऑफ डिजीजेस में डिफेंस देने के कैपेबल है। तो वो एज अ डिफेंसिव क्रोमोसोम एक्ट करने के कैपेबल है। क्रोमोसोम जो है वो ये नॉर्मली हम एंडोजीनियस क्रोमोसोम से डेवलप करते हैं, जो कि नेचुरल फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको टीलोमियर डायरेक्टेड क्रोमोसोम ब्रेकेज या रेडिएशन इंड्यूस क्रोमोसोम ब्रेकेज कहते हैं, उससे हम ये क्रोमोसोम डेवलप करते हैं। यानी कि टीलोमियर डायरेक्टेड, वो दो टीलोमर्स जो लगे हुए थे उनके दरमियान से कट करना है। रेडिएशन इंड्यूस क्रोमोसोम ब्रेकेज यानी कि रेडिएशन से हीट देनी है, तो वो उनका फॉस्फोरेस्टर लिंकेज ब्रेक होना और उनका जो कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं उनका ब्रेक हो जाना, ब्रेक होकर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना, फिर उसमें हमने मैसेंजर आरएनए से बना हुआ सीडीएनए अपलोड करना। ये अपलोड करने से वो उसके अंदर क्रोमोसोम के साथ सीक्वेंस में ऐड हो जाएगा। तो ये जो एडिशन है वो एडिशन टीलोमियर डायरेक्टेड क्रोमोसोम ब्रेकेज या रेडिएशन इंड्यूस क्रोमोसोम ब्रेकेज, जिसमें एंडोजीनियस फंक्शनल सेंट्रोमियर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो वाला हमारा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहलाएगा। तो इन क्रोमोसोम्स को फिर हम डेवलप करते हैं इंडेफिनेटली, जिसको हम कहते हैं सेल लाइंस, जो कि हम की कर सकते हैं माइक्रोसेल मीडिएटेड क्रोमोसोम ट्रांसफर सेल लाइन से। ये एक एंजाइम है जो कि माइक्रोसेल मीडिएटेड क्रोमोसोम ट्रांसफर एंजाइम कहलाता है। ये इस एंजाइम की प्रेजेंस में हम सेल्स को ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो ग्रो करते हैं क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम को ट्रांसफर करते हैं इनटू 46 क्रोमोसोम न्यूक्लियस, और फिर उसको हम ग्रो कराते हैं। तो ये टीलोमियर डायरेक्टेड बन जाती है क्रोमोसोम ब्रेकेज, जिसको हम माइक्रोसेल मीडिएटेड क्रोमोसोम ट्रांसफर कहते हैं। तो ये हमारा सबसे एफिशिएंट वेक्टर है जो कि कहलाता है कॉस्मिड। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो इसके बाद हमारे पास एक है सीडीएनए। तीसरा जो हमारा टूल है वो है सीडीएनए। सीडीएनए मींस कंप्लीमेंट्री डीएनए। कंप्लीमेंट्री हम कहते हैं जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीडीएनए कहलाता है। तो सिंगल स्ट्रैंड हमने डेवलप की होती है फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के साथ हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्ट कराते हैं। जैसे ही वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्ट करता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस के अगेंस्ट डीएनए की सीक्वेंस को डेवलप करने का कैपेबल होता है। तो वो जो बन जाता है उसके अगेंस्ट फिर वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए और डीएनए एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रह सकते। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन के सेपरेट हो जाता है, इन द सेम वे डीएनए भी उससे सेपरेट हो जाता है। तो कंप्लीमेंट्री डीएनए जो है वो डेवलप हो जाता है। ये कंप्लीमेंट्री डीएनए हम किसी भी वेक्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं। प्लाज्मिड में ऐड कर सकते हैं, कॉस्मिड में ऐड कर सकते हैं, फेज वायरस में ऐड कर सकते हैं, कॉस्मिड में ऐड कर सकते हैं, या उसका हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा वेक्टर्स फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द डीएनए फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। दोबारा ज्वाइन कीजिएगा 10 मिनट के लिए जो